تمہارے دوستوں کے معاملات سے مجھے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس نے بالکل لا تعلقی اختیار کر کے سادگی سے سوال کیا۔ حلیفوں کے ساتھ حریفوں والا سلوک نہیں کیا جاتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کل تم نے میری مخبری کے لیے میری گاڑی کو بک کیا تھا۔ وہ الزام بہت واضح اور براہ راست تھا۔ غصے کے اوبال سے گیری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم کو اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنے لہجے پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے براہ راست الزام تراشی کر کے غلطی کا ارتکاب کیا تھا۔ تھوڑی سی تمہید کے بعد وہ بات کہی جاتی تو شاید زیادہ کارگر رہتی۔ میں نے فوری طور پر سنبھالا لے کر کہنا شروع کیا، کم از کم میں یہی سمجھنے پر مجبور ہوں۔ کل دوپہر کو تم سے ملاقات کے لیے میں نے ایک دوست سے گاڑی مستعار لی تھی۔ واپسی پر میں نے وہ گاڑی اس کے گھر چھوڑ دی۔ شام کو ایک مشتبہ گاڑی اس کے گھر والی گلی میں سے رینگتی ہوئی گزری۔ اس میں تمہارے 2 ہم قوم سوار تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں کسی کی تلاش ہے۔ میرا دوست دل کا مریض ہے۔ وہ اس قدر دہشت زدہ ہوا کہ اس کار کے غائب ہوتے ہی اپنی گاڑی لے کر اپنے گھر سے بھاگ کھڑا ہوا اور سیدھا میرے پاس آ پہنچا۔ میں دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ گیری بولا، ابھی تک میرا کوئی ذکر سامنے نہیں آیا۔ یہ بالکل بے سر و پا کہانی ہے۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ میرے لیے وہ سوال متوقع تھا اور میرے ذہن میں اس کا مسکت جواب بھی پہلے سے موجود تھا۔ میں نے اس کے سوال میں پنہاں تجسس کو یکسر نظر انداز کر کے سرسری لہجہ میں جواب دیا۔ میں اپنے ٹھکانے پر تھا۔ میرے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ چند روز پہلے ایڈی دہلی جاتے ہوئے کراچی میں رکا تھا تو کچھ دیر کے لیے مجھ سے بھی ملا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد مجھے اپنی جیب میں ایک چپ ملا تھا۔ تجزیہ کرانے پر پتا چلا کہ وہ سگنل سے نشر کرنے والا ایک خاموش آلہ تھا۔ میں نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور آج تک نکس سمیت کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اپنے دوست کی کہانی سنتے ہی میرے ذہن میں اپنا تجربہ تازہ ہو گیا۔ اسے روکنے کے بجائے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتا رہا اور میں نے پیسنجر سیٹ کے ارد گرد کی تلاشی لینی شروع کر دی، کیونکہ کل دوپہر کو تم تقریباً آدھے گھنٹے تک گاڑی کی اسی سیٹ پر بیٹھے رہے تھے۔ آخرکار مجھے ڈور پاکٹ میں اسی قسم کا دوسرا چپ مل گیا جیسا ایڈی نے میری جیب میں ڈالا تھا، اور تم کو یقین ہو گیا کہ وہ چپ میں نے گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس بار گیری کی آواز نرم اور شاید قدرے تمسخرانہ بھی تھی۔ وہ چپ کہاں ہے؟ میں نے راستے میں اسے ریل کی پٹڑیوں کی طرف اچھال دیا تھا۔ وہ وہیں سنگریزوں میں پڑا ہوا ہوگا۔ پٹڑی پر گرا ہوگا تو کسی ٹرین کے پہیوں کے نیچے آ کر تباہ ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اسے تم سمیت کوئی بھی جھٹلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ گیری اچانک ہنس پڑا اور بولا، تم کو بدترین غلط فہمی ہوئی کہ میں تمہارے تجربے کی سچائی کو پوری طرح تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ کہانی ہی کچھ اور تھی۔ وہ بہت خاص اور بیش قیمت چپ ہے جسے چنے کے دانوں کی طرح برباد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے وہ جان بوجھ کر تمہاری گاڑی میں نہیں ڈالا تھا۔ مڑنے توڑنے میں وہ میری جیب سے نکل گیا ہوگا۔ جب مجھے اس کی گمشدگی کا احساس ہوا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ تم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تم نے وہ چپ میری گاڑی میں کھویا تھا؟ میں نے اس کے سوال جھوٹ پر اپنا غصہ دباتے ہوئے ترشی سے پوچھا۔ معلوم ہوتا تو یہ سب چکر ہی نہ چلتا۔ میں تم کو فون کر دیتا اور تم اس گاڑی کی تلاشی لے کر میرا چپ برآمد کر لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تم کو اقرار ہے کہ تمہارے 2 آدمی اس چپ کی تلاش میں گلشن اقبال میں پہنچے تھے؟ میں نے جرا کرنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے پرسکون انداز میں اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی اور کہا، اس چپ کے سگنل ایک خاص مشین پر مانیٹر کر کے یہ پتا چلایا جا سکتا ہے کہ وہ چپ ایک خاص وقت پر مشین سے کتنی دور اور کس سمت میں ہے۔ وہ دونوں آدمی اس مشین کے ساتھ ہی اپنی مہم پر روانہ ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ الو کے پٹے تمہارے دوست کے مکان کے سامنے گزر گئے اور مشین پر یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ اس وقت چپ سے کم ترین فاصلے پر تھے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، میں نے بھی اسے سچ نہیں بولا تھا۔ دوست اور اس کے گھر کی باتیں بے بنیاد تھیں۔ میں دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں بر وقت ان کی دسترس سے دور نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کی ولدیت کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس بار میں نے اس کی ہڈیوں کو سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ ان حالات میں میرا مشتعل ہونا اور یہاں تک آنا حق بجانب ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری مانیٹرنگ مشین اس چپ کے بارے میں کیا خبر دے رہی ہے؟ گیری کی عقابی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے کہا، وہ پٹری پر گرا اور نہ سنگریزوں میں۔ وہ مال گاڑی کی ایک بوگی کے کسی ایسے حصے میں پھنسا ہوا ہے جہاں تک پہنچنا محال ہے۔ میرے آدمی وہاں رک کر اسے تلاش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ظاہر ہے، میں نے سر ہلا کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ریلوے ملازم یا پولیس والے ان کو مشتبہ انداز میں وہاں پھرتے ہوئے دیکھ لیتے تو غیر ملکی دہشت گردوں کے شبے میں مار مار کر ان کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے۔ تمہاری مانیٹرنگ مشین بھی تباہ ہو جاتی۔ اچھا ہوا کہ اس کا سراغ لگا لینے کے باوجود وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ 2 انسانی جانیں ایک چپ سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔
तुम्हारे लबो लहजे से तंज की बू आ रही है, उसने हल्की सी तुर्शी से कहा। हरगिज नहीं, तुम्हें मालूम है कि यहाँ फैले हुए तखरीबकार आए दिन रेल गाड़ियों और रेलवे ट्रैक को दहशतगर्दी का निशाना बनाते रहते हैं। मैं इसी हवाले से कह रहा था कि वो दोनों वहां रंगे हाथों पकड़े जाते तो इनकी बहुत बुरी दुर्गत बनती और तुम्हारी कोशिशों के बगैर इनकी गुलू खुलासी मुमकिन न होती। एडी वाला चिप कहाँ है? उसने यकायक वो नाखुशगवार मौजू बदल दिया जो उसकी दुखती हुई रग पर दबाव डाल रहा था। मुझे इब्तदा ही से अंदाजा था कि वो चिप भी मॉनिटर किया जा रहा होगा। मैंने इस बारे में कोई सवाल किए बगैर सादगी से कहा, तुम्हारे लिए वो बेच कीमत हो सकता है, मेरे लिए उसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। मैंने बेपरवाही से उसे अपने दफ्तर की किसी मेज की दराज में डाल दिया। वो अभी स्टेशन 4 में पड़ा हुआ होगा। तुमने जब सब कुछ समझ लिया था तो एडी की इस हरकत के बारे में निक से कोई शिकायत क्यों नहीं की? उसने इज्तबा अमेज लहजे में पूछा। शिकायत बेसूद होती। मुझे अपनी जेब में चिप की मौजूदगी का पता चला तो एडी को नई दिल्ली पहुंचे हुए एक दिन हो चुका था। मैं शिकायत करता तो निक कुछ भी ना करता। सारी जिम्मेदारी एडी के सर डाल देता जो रुतबे के लिहाज से उससे सीनियर था। और कुछ होता या ना होता, निक को यह पता चल जाता कि एडी अपनी कोशिश में नाकाम रहा था। वो मेरे जवाब से मुतमईन नजर आ रहा था। मैं अपने फैसले खुद करता हूं। मैं निक को हर बात से बाखबर रखने का पाबंद नहीं था। यह भी मुमकिन था कि मुझसे चिप की वापसी का मुतालबा कर देता। उसके होठों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक झटके से अपनी कुर्सी आगे सरकाई और कोहनियों के बल अपने मेज पर आगे की तरफ झुक कर बोला, यह मुतालबा तो मेरा भी है। वो चिप तुम्हारे लिए बेकार है, वो मुझे लौटा दो। मैं लड़ाई में हाथ आया हुआ माल लुटाने का आदी नहीं हूं। का उसकी वक़्त 2 कौड़ी से भी कम हो। मैंने कदर सख्त लहजे में जवाब दिया। निक से तुम्हारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। तुम दोनों के दरमियान जज्बाती गलतफहमियां जन्म लेती रहीं और दूर भी होती रहीं। वो अलग किस्से थे। एडी बाहर से आया था, उसे सारे पस मंजर का इल्म नहीं था। उसने आते ही होशियारी दिखाने की कोशिश की मगर वो इसके किसी काम नहीं आ सकी। यह बात तुम भी समझ सकते हो कि मेरी बेखबरी में मेरी जेब में चिप डालकर उसने कोई दोस्ताना हरकत नहीं की थी। वो चिप किसी को नहीं दिया जा सकता। तुम इसे मेरी दोस्ताना इल्तिजा भी समझ सकते हो, उसने खलूस और नरमी से कहा, लेकिन मुझे उसके एक एक लफ्ज से मकारी की बू आ रही थी। नहीं गैरी, कोई और बात करो। इस पुराने किस्से को तूल देकर तुम मेरे जख्म खरीद रहे हो। यहां आने तक मैं तुम्हें भी एडी के कबील का मुहिम चो समझ रहा था, क्योंकि तुमने भी इसी की तरह मेरी गाड़ी में चिप डाला था और ये दोस्ताना फेल। उसने मुसलमाना अंदाज में मेरी बात दरमियान से उचक ली और बोला, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि वो चिप बेध्यानी में मेरी जेब से गिर गई थी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ गिरी हुई होगी। मेरे आदमी भागम भाग उसकी तलाश में निकले। मुझे मालूम नहीं था कि इस गली के दूसरे सिरे पर तुमसे मुलाकात होगी। तुम बिला वजह दोबारा वो जिक्र निकाल रहे हो। उसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मेरी मुखलसाना वजाहत पर यकीन नहीं आया। तुमने मेरी बात दरमियान से काट दी। मैं यही कहने जा रहा था कि यहाँ आने तक मुझे तुम्हारी हरकत पर गुस्सा था, लेकिन तुम्हारी वजाहत कबूल कर लेने के बाद मैं हर तलखी को फरामोश कर चुका हूँ और तुमसे दोस्ताना माहौल में बातें कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। फोन पर यह सब बातें नहीं हो सकती थी। उसने गहरा सांस लेकर कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी वजाहत तुमने कबूल कर ली है। आपस की गलतफहमियां दूर करने के लिए मुज़ाकरात की राह सबसे बेहतर होती है। तुम मुझसे मिलने से हिचकिचा रहे थे, मुझे फोन पर टाल रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि रूबरू और 2 टुक बातचीत किए बगैर यह मसला हल नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, निक के बाद मेरी भी तुमसे ज़हनी हम आहंगी हो चुकी है। मैं जब चाहूँ तुमसे मिल सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम स्पेशल टास्क फोर्स के स्टेशन 4 में रहते हो और वहीं तुम्हारा कोई दफ्तर भी होगा। आखिर मुझे तुम्हारी गाड़ी में चिप डालने की क्या जरूरत थी? अपनी पोजीशन की जरूरत से ज्यादा सफाई पेश करने की कोशिश में उसने एक बहुत नाजुक सवाल छेड़ दिया था। मुझे दिल खोलकर उसे रगेदने का मौका मुयस्सर आ गया। मैंने अपनी कुर्सी पर फैल कर बैठते हुए कहा, बात बहुत सीधी सी है। तुम लोगों के जहनों में यह बात बैठ गई है कि मैं डैनी की कमीनगाह से वाकिफ हूँ और तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। निक को शुबा था कि मैंने डैनी की गिरफ्तारी को सोबराज की मौत से मशरूत कर दिया है। जब तक सोबराज सामने नहीं आएगा या मारा नहीं जाएगा, मैं डैनी को उसके हवाले नहीं करूंगा। गैरी बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखा, मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूं तो तुम मुझे पकड़कर कैद नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि मैं अहमक नहीं हूं। अपने एतमाद के 2-4 आदमियों को बता कर आता हूं कि कहाँ जा रहा हूं। अगर एक मुकर्रर वक्त में मेरी वापसी ना हुई तो वो एक हंगामा खड़ा करा देंगे। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। खामोशी से मेरी बात सुनते रहो। जरूरी नहीं कि ये सब दुरुस्त हो, लेकिन मैं यही सोच रहा था। तो मुझे धोखे से अपना कैदी बनाना चाहते हो ताकि किसी को कानो कान पता न चल सके कि कर्नल दावर को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। दौरान कैद मुझ पर तशद्दुद करके तुम मेरी जुबान से डैनी के ठिकाने का राज उगलवाना चाहते हो। इसके लिए जरूरी था कि तुम लोग मेरी पल पल की नकलो हरकत से बाखबर रहो
और मौका मिलते ही मुझ पर हाथ डाल दो। इस बारे में पहली कोशिश एडी ने की। एडी चला जाता, वो चिप मेरे हाथ न लगता तो मैं बेफिक्री से पूरे शहर में घूमता रहता और उसके आदमी मेरी घात में लगे रहते और किसी भी वक्त इनका जाल मेरे ऊपर आ गिरता। एडी नाकाम हो गया, निक मारा गया। तुम आए तो तुमने भी एडी वाली राह इख्तियार की और इस बार चिप मेरी जेब में डालने के बजाय गाड़ी में डाल दिया, क्योंकि तुम उसे मेरी गाड़ी समझ रहे थे। तुम्हारा मंसूबा भी बिल्कुल वही था जो एडी का था। तुमने इसी कार्ड को महज इस वजह से दोबारा इस्तेमाल किया कि तुम एडी वाले चिप के अंजाम से बेखबर थे और मैंने इसके बारे में निक से एक लफ्ज नहीं कहा था। ओह खुदा, गैरी अपनी दोनों हथेलियां मेज की सतह पर मार कर बोला, तुमने शैतानी दिमाग पाया है। हमारे जहनों में दूर दूर तक तुम्हारे अगवा का कोई गुमान नहीं था और तुमने एक जरा सी बात को पकड़कर इतनी लंबी चौड़ी और मरबूत कहानी तैयार कर ली। तुम यकीन करो कि यह तुम्हारा वहम है। हम डैनी तक पहुंचने के लिए वाकई बेचैन है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे साथ किसी गैर दोस्ताना सलूक के बारे में नहीं सोच सकते। मैंने उसे ये याद दिलाना भी मुनासिब नहीं समझा कि उसने डैनी के ना मिलने की सूरत में एसटीएफ की ईंट से ईंट बजा देने की खुली धमकी दी थी। जो लोग इदारों के खिलाफ इज्जत तक आगे जा सकते थे, उनके लिए किसी फर्द वाहिद को चिऊंठी की तरह मसल कर भूल जाना जरा भी मुश्किल नहीं था। इस ज़मन में एसटीएफ की कानूनी पोजीशन गैर अहम थी। यह हकीकत तुमने वाज़े की है। आज मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना होती तो मैं अपने मफरूजात पर कायम रहता और हमारे दरमियान अनाथ की जड़ें गहरी हो जाती। अपने मुखलिसाना रो में बहते हुए तुमने ये नहीं सोचा कि हम एक नाकाम हरबे को तुम पर दोबारा नहीं आजमा सकते। सच पूछो तो मेरी दानिश में तुम्हें एडी वाले चिप के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका था। वो मेरी जेब में था। जब उसके सिग्नल मुसलसल एक ही पोजीशन से आते रहे होंगे तो एडी या निक के कारिंदों ने फर्ज कर लिया होगा कि मैंने वो लिबास उतार कर मैले कपड़ों में डाल दिया है। इन्हें चिप की नाकामी का इल्म उस वक्त होता जब मैं निक से इसके बारे में कोई शिकायत करता। मेरी खामोशी से ये मतलब अखज़ किया गया कि मुझे एडी वाले चिप के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने बायोलॉजिकल गन की शिकायत की थी तो मंतकी तौर पर मुझे चिप का जिक्र भी करना चाहिए था। तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। इस मरतबा गैरी की आवाज़ से हजीमत झलक रही थी। यह बताओ कि अब तुम्हारा ज़हन साफ हुआ या इसमें अभी भी बुग़्ज़ और कीने के कुछ जरासीम परविश पा रहे हैं? यह बुग़्ज़ और कीना नहीं था, मेरे नजरिए की बुनियाद हकायक पर थी। यह बताओ कि तुम्हें इसमें कहीं कोई झोल नजर आया? मैं यही कह रहा था कि तुमने गजब का दिमाग पाया है। बिखरी हुई कड़ियों को खूब यकजा करते हो। मुंतशिर वाक़यात को एक दूसरे से मरबूत करना मेरे मनसिब के फ़राइज़ में दाखिल है। कमोबेश हम सब यही काम करते हैं। शायद ही कोई इस जिम्मेदारी से मुस्तस्ना हो, मगर मैं खुद ऐसी कहानी तैयार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हारे अतराफ पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। बुरा न मानो तो मैं अपने ज़ाती तजस्सुस को दूर करने के लिए एक सवाल करना चाहता हूँ। इस वक्त हम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर जान चुके हैं। मुझे खुशी है कि तुम ज़हीन होने के साथ साथ साफगो भी हो। वसवसों को अपने दिल में परवान चढ़ाने के बजाय यहाँ आए और मुझसे खुलकर बात की। कहो, क्या पूछना चाहते हो? मेरे मामले में तुम खुद को निक का करीबी जानशीं करार दे रहे हो। वो FBI का एजेंट था, तुम पेंटागन के आदमी हो। ये क्या गोरख धंधा है? ये इख्तियारात की सतह की बात है। इस मुसल्लस के निचले सिरे पर दोनों किनारे एक दूसरे से बहुत दूर नजर आते हैं। जूं जूं ऊपर बढ़ते जाओ वो किनारे करीब तर होते जाते हैं और ऊपर जाकर एक नुक्ते में मुतगम हो जाते हैं। ऊपरी नोक को अमेरिका का सदर तसव्वुर कर लो। वो सारे इख्तियारात का मंबा है। हम सब इस नीचे वाली मुसल्लस में कहीं ना कहीं हैं। हम कहीं भी हों, सब मिलजुल कर अपने कौमी मफाद के लिए काम करते हैं। तुम इन चक्रों में ना पड़ो कि कौन क्या है। अब तुम्हारा वास्ता मुझसे रहेगा। उसने बहुत मुदल्लल अंदाज में मेरे सवाल को टाल दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस खेल के किसी मरहले पर पेंटागन वाले भी दरमियान में आ कूदेंगे। तुम नहीं बताना चाहते तो मैं इसरार नहीं करूंगा, मैंने सरसरी लहजे में कहा। अब तक हम डैनी के बारे में बात करते रहे हैं। वीरा के बारे में तुम क्या जानते हो? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने सवाल किया। वो भी तुम्हें मतलूब है और आजकल पाकिस्तान ही में मौजूद है। अंदर की यह खबर तुमने निक तक पहुंचाई थी कि सोबराज ने वीरा को पकड़ लिया था, लेकिन वो उसे जुल्म देकर फरार होने में कामयाब होगी। निक ने अपने जराए से मेरी दी हुई खबर की तस्दीक की थी। तुम उसके बारे में बहुत बाखबर हो। वो अब कहाँ है? मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे कराची में मौजूद होना चाहिए। मैंने अपने ज़हन पर जोर देने की अदाकारी करते हुए जवाब दिया। हमारी इतलात के मुताबिक वो हर वक्त डैनी के साथ रहती है। तुम्हारी इतलात नाकस है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं लेकिन एक साथ रहने का खतरा मोल नहीं लेते। मैंने जब डैनी को पकड़ा तो वीरा वहां मौजूद नहीं थी। इसका जुर्म डैनी से ज्यादा संगीन है। वो एक वफादार अमरीकी शहरी थी, शी में जिमी लाइट की दस्ते रास्त बनी हुई थी, लेकिन अब गुमराह होकर अपने मुल्क के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है। डैनी ने उसका ब्रेन वाश कर दिया है। हो सकता है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो, मैंने नर्म लहजे में कहा। वो जिमी लाइट को अपना बाप समझती थी।
जब उसे व्हाइट हाउस के अहाते में कत्ल किया गया तो बगावत पर उतर आई। अगर यहूदियों के इमाम पर जिमी लाइट को रास्ते से ना हटाया जाता तो वीरा आज भी बाकी ना होती। सदर से मुलाकात के चंद मिनट बाद उसका कत्ल बहुत मानीखेज था। तुम यहूदियों के खिलाफ बुग़्ज़ और मुनाफरत में मुब्तला हो। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन मैंने उसकी बात काट दी। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, वीरा की बात दोहराई थी। हम वीरा को अमेरिका ले जाकर इस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाएंगे और मीडिया पर इसकी भरपूर तशहीर होगी ताकि वो जहरीली नागन दूसरे अमेरिकियों के लिए इबरत का सामान बन सके। वो बदतरीन सजा और अंजाम के मुस्तहिक है। उसका सबसे बड़ा जुर्म तो यही है कि वो हेरोइन के इंसदाद के नाम पर शी के जरिए इस वबा के स्मगलिंग और फरोग की सरपरस्ती करती रही। शी मेरा मौजू नहीं है, वो कसमसा कर बोला। वो भी उसकी दुखती रग थी। यह रिकॉर्ड की बात थी कि अपने अच्छे दिनों में शी आलमी सतह पर हेरोइन की सबसे बड़ी अकेली सौदागर थी और उसके सरबराह को बराह रास्त अमरीकी सदर तक रसाई हासिल थी। शी के बगैर वीरा का जिक्र अधूरा रहता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मालूम है कि इस तज़किरे से हर अमरीकी बेआराम होने लगता है। अमेरिका की नई नस्ल को हेरोइन की यलगार से बचाने के लिए शी के जरिए दुनिया भर में इस नशे की मंडियां पैदा करना एक भयानक मुआशरती अलमिया है। डैनी और वीरा ने इस अलमिये से जन्म लिया था। बार बार हेरोइन का जिक्र दरमियान में ना लाओ, माजी को दफन रहने दो और आज की बात करो। मैं डैनी के साथ वीरा को भी अपने शिकंजे में कसना चाहता हूँ। वो छल्लावा बनी हुई है। डैनी एक बार मेरी गिरफ्त में आ चुका है लेकिन वीरा के ठिकाने पल पल बदलते रहते हैं। वैसे भी वो कभी मेरा हदफ नहीं रही। मैं खूबसूरत, ज़हीन और दलेर लड़कियों की कदर करता हूँ। जब तक वो हमारे कानून से नहीं टकराती मैं इस पर हाथ नहीं डालूंगा। इसे तुमको खुद देखना होगा। तो क्या कत्ल और खून रेजी को तुम अपने कानून से मुतसादिम नहीं समझते? उसने हैरत और कदरे इस्तेहाल के साथ कहा। वीरा के हाथ इंसानी खून में लथड़े हुए हैं। तुम्हारी कही हुई बात को सनद नहीं माना जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई शहादत नहीं है। फिलहाल बात डैनी की जात तक महदूद रखो। वीरा को तुम डैनी से कम न समझो। वो आफत की परकाला है। कम हो या ज्यादा वो 100% तुम्हारा दर्द सर है। मैं इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करूंगा। आप कोई और बात करो या मुझे इजाजत हो। मालूम होता है कि इस बदमाश लड़की ने तुम पर डोरे डाले हुए हैं। वो मर्दों को रुझाने के फन में बहुत ताक है। उसने यकायक लहजा तब्दील कर लिया। तुम जो चाहो समझ लो, मैं किसी बात की तायद या तरदीद नहीं करूंगा। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसके इबरतनाक अंजाम पर तुम्हें बहुत जल्द अफसोस का सामना करना होगा। वो एक वक्त में एक से ज्यादा मर्दों को उल्लू बनाए रखती है। हैरत है कि डैनी से उसके करीबी मरासम के बारे में जानते बूझते हुए भी तुम उसके दाम में आ गए। तुम बिलावजह क्याफे लड़ा रहे हो। मैंने हल्के से तंज से कहा, कोई किसी के दाम में नहीं आया। इस जिनसी गंध को अपने जहन से निकाल दो। ये मशरिक का तसव्वुर है। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि तवील साइंसी तहकीक के बाद जिन्स को इंसानी जहन और आसाब के लिए सबसे बेहतरीन फितरी तफरीक करार दिया जा रहा है। तुमको ये आज़ादी है तो तुम्हारे घर की औरतों को भी इस फितरी तफरीक से फैज़याब होने की पूरी आज़ादी हासिल होगी। घर की औरतों का जिक्र आते ही गैरी ने यूं बुरा सा मुंह बनाया जैसे चॉकलेट चबाते हुए यकायक कोई कंकर उसके दांतों में आ गया हो। तुम एक बुरी आदत है कि तुम हर बात को उसकी इंतहा तक ले जाते हो। घरेलू औरतों के लिए इनके शौहर काफी होते हैं। मैं दूसरी कुमाश की बात कर रहा था। वो भी किसी की बीवी, बहन या बेटी होती हैं। दूसरों की जेब में हाथ डालने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि तुम्हारी बेखबरी में कोई तुम्हारी जेब भी काट सकता है। तुम तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल होने के बावजूद अंदर से दकियानूसी आदमी हो। मेरी निश्तर जनी से वो चिल्ला कर बोला। वीरा जैसी आवारा और रंगीन मिजाज लड़की के जिक्र को तूल देकर कहां से कहां ले गए। ये बताओ कि तुम इस वक्त टैक्सी से क्यों आए हो? कल शाम वाले वाक़े के बाद मैं अपने दोस्त से दोबारा उसकी गाड़ी मांगने की पोजीशन में नहीं रहा। इसके सामने मुझे बहुत नादम होना पड़ा है।